भी किया जा सकता है, अगर इशू हो गए तो उसको कैंसिल भी किया जा सकता है और उसको वाइड भी किया जा सकता है। नो वोटिंग राइट शैल बी एक्सरसाइजेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज शेयर्स। If the restrictions are imposed, then the Commission may, by order, direct that the shares shall be subject to the restriction for such period not exceeding 1 year, as may be specified in the order. अगर वो कमीशन की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो 1 साल से ज्यादा नहीं होगी एज पर ऑर्डर ऑफ द कमीशन। Okay. Where a transfer of shares in the company has been taking place and as a result a change in the directions of the company is likely to take place, and the commission is of opinion that any such change would be prejudicial to the public interest, the commission may by order direct that। means के order shares इशू हो चुके हैं। एक सेकंड ज़हीर साहब, वकास, सॉरी फवाद, ये मुझे लगता है कि अपनी स्लाइड से वो पढ़ रहे हैं, तो आप उनकी स्लाइड्स लगा दें उन्हें। जी बेहतर है सर। जी 279 उनको लगा ग्रुप 4। जी मैं ग्रुप 4 की जो है मैं खोलता हूँ सर। जी थैंक यू। ज़हीर यहाँ पे 279 सॉरी जी प्लीज आगे एक स्लाइड आगे जी जी। Where a transfer of shares in a company has been taking place and as a result a change in the directors of the company is likely to take place, means के शेयर जब इशू हो गए हैं और बाद में ये कोई डायरेक्टर्स की चेंज कर रहे हैं, तो फिर जो कमीशन है वो अगर इसको समझता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है तो कमीशन उसको ऑर्डर कर सकता है कि इसको कैंसिल या अवॉइड किए जाए। The voting rights in respect of those shares would not be exercisable for such period not exceeding 1 year, as may be specified in the order। अब इसी की सब क्लॉज में वो ये कह रहे हैं कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो शेयर्स के वो एक्साइजेबल नहीं होंगे अगर वो 1 साल से ज्यादा हो गए हैं शेयर को इशू किए हुए। नो रेजोल्यूशन पास और एक्शन टेकन टू इफेक्ट ए चेंज इन द डायरेक्टर बिफोर द डेट ऑफ द ऑर्डर शैल हैव इफेक्ट अनलेस कंफर्म बाय द कमीशन। जब तक कमीशन कंफर्म नहीं करेगा जब जिस दिन से ऑर्डर हुए हैं तो वो जो रेजोल्यूशन है या जो एक्शन डायरेक्टर्स ने लिया है वो इफेक्ट नहीं होगा इन फोर्स। नेक्स्ट प्लीज। The commission may by order at any time vary or rescind any order made by it under subsections। Any order made by the commission under subsection 5 shall be served on the company within 40 days of the making of the order। कोई ऑर्डर अगर हुआ है तो उसको जो नोटिस है वो 14 दिन के अंदर अंदर कंपनी को सर्व करना पड़ेगा जब से वो ऑर्डर प्लेस हुआ है। Any person who exercise or purports to exercise any right to dispose of any share or of any right to be issued with any such share in respect of any shares, whether as holder or proxy, or appoints a proxy to vote in respect when to his knowledge he is not entitled to do so by reason of any of restriction applicable to the clause under subsection 1 and 2। अगर कोई शेयर होल्डर है या उसकी जगह कोई अटेंडेंट है या उसकी जगह कोई वोट दे रहा है जो उसके नॉलेज में है कि वो नहीं है, टू डू सो बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल टू द केस अंडर सेक्शन 1 and 2, उस पे रिस्ट्रिक्शन किसी भी वजह से नहीं हो। Transfers any shares in contravention of any order made under subsection shall be punishable with imprisonment or fine। अगर उसके तहत ऑर्डर के तहत भी अगर वो ट्रांसफर और शेयर करेंगे जो कि ऑर्डर के बिल्कुल अगेंस्ट होगा तो उसकी सज़ा
या तो इम्प्रिजनमेंट है या फाइन है। A prosecution shall not be instituted under this section except by or with the consent of the commission। कोई भी केस नहीं किया जा सकता इस सेक्शन के लिहाज से विदाउट द कंसेंट ऑफ द कमीशन, कमीशन को मुतला किए बगैर या उनकी इंटेंशन। This section shall also apply in relation to debentures as it applies in relation to shares। ये debentures पे भी ये section apply होता है as well as shares पे भी। Next, Section 280, saving for legal advisors and bankers। Nothing in Section 262 to 270 or 275 to 279 will require the disclosure to the registrar or to the commission or to an inspector appointed by the commission by a legal advisor of any privileged communication made to him in that capacity except or as respects the name and address of his client। अगर कोई लीगल एडवाइजर किसी क्लाइंट का कोई थोड़ा सा इफेक्टी है या इसका होल्डर है या जो इफेक्टी है उसको बाय द बैंकर्स ऑफ एनी कंपनी रेफर्ड इन द सेक्शन अफोरसेड एज सच बैंकर्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एज टू द अफेयर्स ऑफ एनी ऑफ देयर कस्टमर अदर देन सच कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन। अगर कोई कंपनी का बैंकर है और वो इस सेक्शन में आता है, रेफर किया जाता है या उसके अफेक्टी है या उसको रेफर किया गया है, तो वो बैंकर को भी आप दे सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो ये बात। Inquiries and investigation not to be affected by winding up। And inspection may be proceeded with under section 231 to 61 to 62 to 63 to 65 and 267 and any consensual action taken in accordance with any provision of this ordinance that a company has passed a resolution was wind up। कंपनी वाइंड अप करने के लिए या तो एक रेजोल्यूशन पास करे, a petition has been submitted to the court for winding up the company, या फिर कोई किसी ने रिट पिटीशन दायर किया है कि ये कंपनी को वाइंड अप किया जाए, और एनी अदर सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंपनी और इट्स ऑफिसर अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। या किसी भी कंपनी के डायरेक्टर ऑफिसर या उस कंपनी के अगेंस्ट कुछ सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग या ऑफेंस है तो उसके अगेंस्ट अगर वो केस इनिशिएट हुआ है तो फिर वो वाइंडिंग आपकी वो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरीज वो इफेक्ट होंगी। नेक्स्ट प्लीज। सेक्शन 283। इधर से मैं प्रोसीड करूंगा अपना ज़हीर साहब। चलें जी सर। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर सेक्शन जी 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 रिजवान बात कर रहे हैं सर। मैं रिजवान क्वेश्चन साहब पूछना था। ज़हीर साहब ने 283 में कहा कि कोई पिटीशन फाइल करेगा कंपनी को वाइंड करने के लिए, वाइंड अप करने के लिए कोर्ट में। मैंने ये पूछना था कौन बंदा ये पिटीशन फाइल कर सकता है अदर देन कंपनी या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी या ओनर ऑफ द कंपनी? सर मैं ये लिखा हुआ है एनी अदर सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंपनी और इट्स ऑफिसर अंडर, मतलब किसी को भी उसके साथ कोई मसला है, कंपनी को किसी या उसका कोई राइट्स अफेक्ट हुए हैं और अगर वो जाता है कोर्ट में, सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो वो आपको सबमिट कर सकता है अपनी पटिशन कोर्ट में कोई भी कर सकता है। मींस जिसके कोई भी राइट्स कंपनी की वजह से मतलब हुए हैं, इफेक्ट हुए हैं, कंपनी ने मतलब अफेक्ट हुए हैं, तो वो जा सकता है। कोई भी एनी अदर पर्सन, वो सिविल है, एनी अदर पर्सन, आइदर वो शेयर होल्डर है या कोई कंपनी का कोई भी उसके साथ कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वास्ता है, तो उसके वो इसके राइट्स या उसके कुछ हुई है एप्लीकेशंस इफेक्ट हुई हैं, तो वो कोई भी जा सकता है सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए, तो वो सबमिट कर सकता है। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू।
रिजवान साहब एक लाइन में मैं भी इसमें एक चीज ऐड कर दूं कि जी सर, कोई भी बंदा किसी भी कंपनी के खिलाफ पिटीशन दायर करके कह सकता है कि इसको बंद कर दो। कोई भी बंदा, आप कर दें सुबह जाके कि यूनिलीवर नहीं होनी चाहिए लाइक पाकिस्तान सर, मैं वही क्वेश्चन करने लगा था। लाइक अब ये जो क्राइसिस थे, हाँ, ठीक है, शेल है, टोटल है, पीएसओ है, तो मतलब कोई भी बंदा से, मतलब कोई भी कस्टमर जो पेट्रोल यूज करते हैं, तो वो मतलब जाके कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इज इट यार रूल? दो हाँ, ये कुछ लोगों को बीमारी होती है। दो लोग ऐसे हैं, एक सहाफी, जी जी कोई भी सहाफी आपको फोन करके कह सकता है कि मैं आपकी खबर लगाने लगा हूँ तो मुझे 5,000 दे दें, अपनी अपनी उसके लेवल के मुताबिक के उसकी ऐसा ही है सर। उसकी ऐसा ही है। न्यूसेंस कितनी है, ठीक है। तो ये भी एक वकील, ब्लैकमेलिंग वाली गेम है। और अगर तो कंपनी ऐसा से ही कोई है। छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो बड़े लोग जाते हैं, केस फाइल करते हैं। तो वो जब केस फाइल होने वाला होता है तो वहां पे जिधर दर्ज करवा रहे होते हैं तो कोर्ट से ही फोन आया था, जी आपके अगेंस्ट केस हो रहा है, ये फलां बंदा है, बात करेगा। वो कहता है जी मैं आपके अगेंस्ट केस कर रहा हूँ। आप कहते हैं अच्छा यार आप केस ना करें तो मैं आपको 10,000 रुपया भिजवा रहा हूँ। वो कहते हैं नहीं जी मैंने 50 लेना है। हम कहते हैं नहीं जी आपने 15 ले लें और बात खत्म हो जाती है। ऐसे तो रोज होता है, ये कोई ऐसे ही है। मसला नहीं ये तो। ऐसे और ऐसे ही है। इसको मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में कंपनीज जो है ना वो कवर करके और खत्म ऐड कर कर, देती है। ठीक है, ठीक है। चलें थैंक यू। चलें जी, क्या वेलकम, नो प्रॉब्लम। जी जी मैं कंटिन्यू सर? अच्छा, जी आप कंटिन्यू करने से पहले क्या नाम है, फवाद साहब, कितने टाइम रह गया हमारे पास? जी सर, 15 मिनट है सर। चलो ठीक है, कंटिन्यू करें जी, कंटिन्यू करें तला साहब। Sir, Section 283, power for companies to refer matters to arbitration. A company may by written agreement refer to arbitration in accordance with the Arbitration Act 1940, an existing or future difference between itself and other company or person. Companies parties to arbitration may delegate to arbitrator powers to settle any term or determine any matter to be lawfully settled down. सर इस सेक्शन का ये कहना है कि कंपनी रिटन एग्रीमेंट के जरिए कोई अपना फ्यूचर या प्रेजेंट जो डिस्प्यूट है कंपनी के दरमियान, कंपनी और दूसरी कंपनी के दरमियान, या कंपनी या किसी फर्द के दरमियान, वो आर्बिट्रेटर को, जो कि काइंड ऑफ रेफरी एम्पायर, या यू कैन से जिसको उर्दू में सादा अल्फाज में सालस, जो कि डिस्प्यूट सेटल करता है, उसको रेफर कर सकते हैं मैटर। मे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। Section जी जी 284, powers to compromise with creditors and members. Where a compromise or arrangement is proposed between a company and its creditors or class of creditors, or between the company and its members or class of them, the court may, on the application, order a meeting of the above said creditors or members to be called, held, and conducted in such manner as the court directs. इसमें अगर कंप्रोमाइज या अरेंजमेंट के लिए वो एग्री करते हैं क्रेडिटर्स या उनका कोई ग्रुप, या कंपनी के मेंबर्स या उनका कोई ग्रुप, तो कोर्ट की डायरेक्शन पे वो कोई एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है इन अ मैनर विच कोर्ट में डायरेक्ट। If a majority number representing 3/4 in value of the creditors, members, or class of them present and voting either in person or by proxy at a meeting agree to compromise or arrangement, it is sanctioned by the court. It will be binding on all the creditors. अगर कोई मेजॉरिटी नंबर जो कि 3/4 एटलीस्ट हो क्रेडिटर्स का या मेंबर्स का, अगर वो किसी कंप्रोमाइज या अरेंजमेंट के लिए वो एग्री कर जाते हैं, तो कोर्ट के जरिए अगर ये सैंक्शन होगा तो वो बाकी तमाम मेंबर्स या क्रेडिटर्स के लिए बाइंडिंग होगा, यानी उन पे भी एप्लीकेबल वही शराइत होंगी। Number 3, an order have no effect until a certified copy of the order has been filed with the registrar within 30 days, and a copy of every such order shall be annexed to every copy of the memorandum of the company issued after the order has been made and filed. ऑर्डर वो तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी विद इन 1 मंथ जो है वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट ना करवाई जाए, और जो कि उसके साथ अटैच होगी एक मेमोरेंडम की कॉपी, कंपनी मेमोरेंडम की। If a company makes default in complying with the above subsection, the company and every officer responsible for default shall be liable to a fine which may extend to 5,000 rupees for each copy in respect of which default is made. The court may at any time after an application has been made to it
stay the commencement or continuation of any suit or proceedings against the company on such terms as it thinks proper and fit until the application is finally disposed of. कोर्ट किसी भी टाइम पे जो एप्लीकेशन कोर्ट को सबमिट करवाई गई है उसके अगेंस्ट जो प्रोसेस कंटिन्यूड है उसको वो रोक सकती है जब तक वो के फाइनली उसको डिस्पोज ऑफ ना कर सके, एप्लीकेशन को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट ना कर पाए. In this section, the company means any company liable to be wound up. Arrangement means reorganization of share capital. ये उन्हीं जो above said terms हैं उनको उन्होंने explain किया. Next section 285, power of court to enforce compromises and arrangements. तला साहब एक मिनट रुकें, 285 से हम स्टार्ट करते हैं. एक मिनट रुकें. अभी ना पार्टिसिपेंट्स 36 हैं, बड़ी अच्छी बात है. आई थिंक इतनी हमारी क्लास स्ट्रेंथ है. फवाद सब सही कह रहा हूँ? 36 या 37 लोग हैं, 37 हो गए. वेरी गुड, दिस इज परफेक्ट. और क्या नाम है जी, एक सेकेंड. 37 लोग हो गए. चलें, मेरा ख्याल है कि हाईएस्ट क्लास स्ट्रेंथ है. अच्छा, एक छोटी सी चीज है. सारे लोगों के पास, अगर किसी के पास अभी अपने व्हाट्सएप की एक्सेस नहीं है, जो कॉर्पोरेट लॉ का ग्रुप है, तो वो मुझे अपना हैंड रेज करके बता दे. तलहा और मुकद्दस अपने हैंड रेज रखें, आपका मसला नहीं है. किसी के पास व्हाट्सएप की एक्सेस नहीं है तो मुझे अभी बता दे. एनीवन हु डज नॉट हैव एक्सेस टू व्हाट्सएप. ठीक है, ये जिन्होंने लीव कर दिया है ना ग्रुप मेंबर्स ने आपके, तो वो उनकी अपनी उनका अपना प्रॉब्लम है. लेकिन उनको दोबारा वापस बुला लें. अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर ले, कोई छोड़ के जा रहा है तो आज की क्लास मिस करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. ठीक है, जरा आपका वैसे तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसको मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं. मरियम संधू, आपका नाम मरियम संधू नहीं है जी. बताएं क्या कहना है आपने? आपका व्हाट्सएप की एक्सेस नहीं है अभी? जी मरियम, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही. आपको अपना माइक अनम्यूट करना पड़ेगा. जी सर. जी बताएं. आपने हैंड रेज किया था. सर तलहा प्रेजेंट कर रहे थे तो मैंने इसलिए कर दिया कि मैं भी उसके ग्रुप की मेंबर हूँ. अभी ठीक है, नहीं अभी कोई मसला नहीं, अभी आप रहने दें. मैंने सिर्फ ये पूछा किसी के पास व्हाट्सएप की एक्सेस नहीं है तो अपना हैंड रेज करे. ठीक है, व्हाट्सएप बस. तुम्हारे पास टाइम कितना रहता है सर? 8 मिनट है. 8 मिनट बहुत टाइम है. ठीक हो गया. अच्छा, मैं अब जरा अपना जो आप लोगों का ग्रुप है ना कॉर्पोरेट लॉ का, उसको जरा प्लीज देखते रहें. मुझे 2 मिनट दें, मैं एक मैसेज टाइप कर लूँ, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ. ठीक है, ओके.
अच्छा यार, एक छोटी सी आपने एक गेम मेरी हेल्प करनी है, ठीक है? जी सर। सर वी कांट हियर यू। जी जी, एक सेकंड जी, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दें, सॉरी। ओके। मल्टीटास्किंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं थोड़ा कम टैलेंटेड इंसान हूँ, यू हैव टू नहीं, बेयर विद मी कोई मसला नहीं। थोड़ा सा। जी जी, मेहरबानी आपकी। फवाद साहब, कोई ऐसा ग्रुप है हमारा जिसके अंदर तीन टोटल मेंबर 4 से ज्यादा हो? एक में 5 थे, लेकिन मेरा ख्याल है उनका भी एक मेंबर ने कर दिया था काम। आई थिंक कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें 5 मेंबर्स हो, 4 ही जी ऐसे ही है? 5 नहीं, 5 है, 5 5 है, हैं। ग्रुप नंबर 10 में ग्रुप 5। 10 अच्छा, में। 5 है। जी सर। अच्छा लेकिन अच्छा फॉर अच्छा, दैट मैटर ग्रुप नंबर 10 में जी फॉर दैट मैटर ग्रुप 9 में 3 है। अच्छा, ग्रुप 9 में 3 है। और ग्रुप 10 में 5 अच्छा, सर। ठीक है, ओके ओके, ऑल राइट। चलिए जी, मैं आपको ना अभी एक टेम्पलेट भेज रहा हूँ, आपने इसी को कॉपी करना है अभी, इन्हीं 8 मिनट के अंदर अंदर आप सबने ये करना है, ठीक है? इसी टेम्पलेट को आपने कॉपी करना है और आपने उसको चैट में पेस्ट करना है, और जो मैंने लिखा हुआ है उसकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे मांगी है वो आपने फिल करनी है और करके आपने दे देनी है, ठीक है? जिनके जिनके ग्रुप मेंबर्स 3 है, ये टेम्पलेट मैंने आपको भेज दिया, ठीक है? जिनके ग्रुप मेंबर्स 4 हैं वो तो इसको फॉलो करेंगे, ठीक है जी? और अपने नाम के और अपने ग्रुप मेंबर्स के आगे आप किसी को इक्वल पॉइंट्स नहीं दे सकते, अपने आप समेत, ठीक है? जिनके 4 हैं, जिनके 5 हैं, वो भी इसी टेम्पलेट को फॉलो करें। आपने 10 मार्क्स को डिवाइड करना है अपने ग्रुप मेंबर्स में, ठीक है? और आपके पास टाइम उतना ही है जितना हमारे पास इस कॉल को डिस्कनेक्ट होने पे है। मेरे साथ कॉल पे रहें आप सारे लोग, और अपने अपने जो माइक्स हैं ना उनको प्लीज काइंडली अनम्यूट कर दें। वैसे तो आप चैटिंग में भी कर सकते हैं ये काम, बल्कि रहने ही दें, कोई बात नहीं। टाइम आपके पास इतना ही है, आप 36 लोग हैं। आई नीड 36 मैसेजेस इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स। कॉपी करें, 10 मार्क्स को डिवाइड करें अपने ग्रुप मेंबर्स में। आप उनको कितने मार्क्स देते हैं, उन्होंने जो आपके साथ काम किया, आपकी हेल्प की, पार्टिसिपेशन की। जहां पे आपका मैंने योर नेम लिखा है, आपका ग्रुप नंबर, आपका नाम, जो आपका सही नाम है, मतलब मरियम संधू साहिबा का सही नाम मरियम एहसान है, तो प्लीज वो मरियम एहसान ही लिखें, ठीक है? तो अपना नाम लिखें और उससे उसके बाद अपने आप को भी पॉइंट्स दें। अपने आप को 2 नंबर दे दें, 5 अपने आप को दे दें, बाकियों को 1 दे दें, 2 दे दें। आप इक्वल डिवीजन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिवाइड इक्वली। अभी करें मेरे साथ कॉल पे रहते हुए फौरन। सर प्राइवेट मैसेज करना है ग्रुप में? नहीं नहीं, ग्रुप में मैसेज करना है, प्राइवेट नहीं करना। प्राइवेट मैसेज मुझे नहीं चाहिए किसी का भी, ग्रुप में अच्छा मैसेज सर, करें। और ऐसा किसी है का कि सवाल? जी जी, ऐसा मीटिंग जी में जी, सर अब रिमेनिंग 1 मिनट आई थिंक लेफ्ट है सिर्फ, तो फिर रीज्वाइन फौरन करें। फौरन रीज्वाइन करें 1 मिनट से पहले। आपको टोटल 1:18 हुए हैं, टोटल टाइम 1:25 तक है। मुझे उसके 1:25 भी नहीं, 1:22 तक है, 4 मिनट रहते हैं। मुझे उसके अंदर सबका आंसर चाहिए। जो आंसर सर नहीं रहेगा सिर्फ उसके ये बाद में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सर सिर्फ ये बता हाँ जी, दीजिए कि नेम के आगे ही मार्क्स एलोकेट करने हैं। अपना नाम, अपने ग्रुप मेंबर्स का नाम लिखें, अपना नाम लिखें, अपने नाम जी के आगे अपने आप को भी नंबर दें 10 में। ठीक हो गया आपके टोटल मार्क्स 10 है, ठीक है? ठीक हो अपने गया। नाम के आगे आपने अपने आप को मार्क्स आउट दे ऑफ देने 10 हैं, सर अपने ईच आप को मेंबर को 5 दे दें। मार्क्स एलोकेट करने हैं। नहीं 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 नहीं, ईच मेंबर को आउट ऑफ 10 नहीं, टोटल 10 होना चाहिए ठीक मार्क्स हो का। गया सर, ठीक हो, थैंक यू सर। ये नीलम नीलम अब्बास, आपने गलत मैसेज किया है, ठीक है? आपने इनको मार्क्स दे दिए। हाँ, ये जो मैसेज आया है ना जहीर का, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है? उसने 2 अपने आप को दिए हैं, 2 मुकद्दस को दिए हैं, 3 ताहिरा को दिए हैं, 3 कुरतुलैन को दिए हैं, बिल्कुल सही है। ये 10 टोटल हो रहा है। नीलम, आप अपने आप को भी इसी में से दें, अपना मैसेज डिलीट कर दें आप। जल्दी करें, जल्दी, 4 मिनट है आप लोगों के पास। और एक आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि
क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग अपनी ईद की खुशियों में खाना शाना खाते हुए मुझे भूल जाए। तो इंशाल्लाह ये जो 2 हफ्ते हैं इसके अंदर आपके क्विज शुइज होंगे, छोटे छोटे सरप्राइजेस होंगे आपके लिए, तो आपने घबराना नहीं है, आपने रेडी रहना है। ईद की छुट्टियों में तंग नहीं करूंगा लेकिन उसके अलावा, ठीक है। कोई सवाल किसी ने पूछना है तो हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आस्क, माइक्स ओपन करें और पूछें। मैं आपके हाथ नहीं देख रहा, मैं आपके मैसेजेस देख रहा हूँ। ये मावरा, ये आपने क्या भेज दिया यार, ये मत भेजें प्लीज। नीलम अपना मैसेज डिलीट करें और मावरा प्लीज इसको फिल करके भेजें, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। फरवा का भी बिल्कुल ठीक है। कॉपी नहीं हो रहा था तो इस वजह से वो वैसे ही फॉरवर्ड हो गया आपको मैसेज। जी इसको डिलीट कर दें, डिलीट फॉर एवरीवन कर दें, इसमें ऑप्शन होती है। सर एक क्वेश्चन है। पूछे 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 पूछे। सर ये कितने % चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटी ओपन होने पे हमारा एग्जाम वो 100%। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी पूछे सर हमारे ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं। कोई बात नहीं, 5 मेंबर्स हैं, डिवाइड करें, किसी को 1 नंबर दें। आप इक्वल मार्क्स नहीं दे सकते, 5 हैं तो 10 नंबर बड़े हैं यार, आप डिवाइड करें, वो मेरा मसला है, मैं खुद ही देख लूंगा बाकी। आपके आप